there were 20-30 times I was actually kind of forecasting the screenplay. I was like, abhi accident hoga, abhi ladai hogi, abhi court mein hi hoga, and every time I was proved wrong and I was like, shit, I mean this kind of perspective I've never seen. और जब मैंने ये देखा तो मेरे को झटका लगा, मेरे को मतलब जो अंदर के सारे कन्वेंशन, सारे प्रेजुडिस, सब कुछ टूट गया मेरे अंदर का। जो कहते हैं ना कि आज मैं यहाँ हूँ, एब्स्ट्रैक्ट रूम में हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म की वजह से। You are so involved in the nuances of what's really happening was because every 3 minutes something new has come up. So it's a goddamn thriller that's going on in front of you. Once you start watching it, आप ये सब भूल जाते हो, तो एक पॉइंट के बाद फर्क नहीं पड़ता कि क्या ये सबसे अच्छी मूवी उस साल में थी या नहीं थी। ये जिस तरीके से हिट करती है ना, आई एम नॉट श्योर इफ कोई और कर पाएगी। Ashutosh, I'll just ask you firstly, why do you think you chose this film? मैं recently मतलब इसके बारे में और सेपरेशन के बारे में लिखना चाह रहा था, so I rewatched it. मैंने लास्ट में 2014 में देखी थी, तो तब ऐसा लगा था कि बहुत क्लियर कट, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में शायद आंसर था इसका। बट जब मैंने अब रिविजिट की 21 में, तो बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसा लगा कि मैंने एक तरीके से पूरी नई मूवी देखी। सो आई फेल्ट लाइक इसमें बहुत सारा डिस्कशन है जो मतलब शायद अभी ये तो सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव से था जो मैंने सोचा हुआ था, लास्ट 7 years or something. From here on, I wanted to like hear from everyone कि how is it at large. जितना भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन पढ़ा है, सब बहुत वैसा था, मतलब फॉरेन के लोगों का ही था। सो एक इंडियन पर्सपेक्टिव मुझे कभी मिला नहीं इस चीज में, जो कि आई थिंक बहुत इंट्रिकेट है और बहुत रिलेटेबल हो सकता है। Anyone over here who watched the film for the first time, अभी just before the discussion or something, could you just tell us your experience? Initially, जैसे मूवी शुरू हुआ, the immediate thought was ये तो मैरिज स्टोरी है। We already did this. But जैसे स्टोरी अनफोल्ड हुआ, like तब पता चला it's not a purely emotional tale, ड्रामा है, it's a courtroom drama. And one thing which really क्या stuck with me was कि traditional courtroom dramas की तरह नहीं है ये. This is something different. Traditionally मतलब they focus on like grand judgments, जैसे ये ऐसे statements बोलते, this was more of कि real life में ऐसे ही होता है। You don't rush to the court and say your honor ये evidence ऐसे करके नहीं करते वो। It's all a natural flow of thought कि कुछ लोग भूल जाते हैं बोलना, कुछ लोग मतलब ऐसे याद आता है, तो it's very natural and it's very real. That's what I thought. तो मुझे लगता है जो असगर फरादी ने ओपनिंग और एंड ही किल किया है, especially the first line जब वो कहता है ना, वो कहती है हाँ your father does not know you, but वो कहता है but I know him. तो मेरे एक दिल में कौंधता है कि शायद तुम्हारा सारा मेमोरी लैप्स हो गया हो, you've forgotten all your 70 years or so, but कहीं जहन में, कहीं deep recesses में तो होता ही होगा कि so and so is my son, and to abandon that father, मतलब तुम्हारे पूरा वैल्यू सिस्टम ही। Exactly. So वो पार्ट मुझे बहुत poignant लगा, and Charmiya, the 11-year-old, brilliant, like एकदम you could feel कि उसके real parents are separate. If I'm not wrong, the 11-year-old girl was the director's daughter. She was a reference point for the story because whenever you saw the two of them, most of the times, from a technical standpoint, most of the times the camera never actually went really close to them. It was the kid for whom we actually felt more than anybody else. But for example, last scene also, when both the husband and wife are standing over there, you don't feel for them. You feel for their kid who's inside, who have to make a decision now. Yes. It's on her to choose her own life, but at the end. While watching this film, मैंने अपने आप को गलत ठहराया है, मतलब 20-30 बारी, because when I saw this film, I mean, उसके बाद कुछ interviews देखे ना, a lot of things I've seen, I realized that, even though I have watched a certain piece of cinema, there are so many things जो मैंने अपने अंदर बस डालनी है, in order to understand a cinema, in order to understand a film. And आज वो पूरा, it boils down to zero. I have learned nothing. Nothing means nothing. मतलब there were 20-30 times I was actually, kind of forecasting the screenplay. I was like, अभी accident होगा, अभी लड़ाई होगी, अभी कोर्ट में ही होगा, and हर point पे मैं गलत proof हुआ, हर point पे. And I was like, shit. I mean, this kind of perspective I've never seen. जो भी कहते विशाल अभी कहते फील कर रहा है ना, सेम फीलिंग मेरे को 4 साल पहले जब मैंने पहली बार देखी थी, तब मेरे को सेम फीलिंग हुई थी। मतलब उससे पहले मैं क्रेजी, मतलब बॉलीवुड की इतनी फिल्में मैं देखता था और बाहर की मेरे को लगता था बॉलीवुड के अलावा और कोई दुनिया है ही नहीं। और जब मैंने ये देखा तो मेरे को झटका लगा,
मेरे को मतलब जो अंदर के सारे कन्वेंशन, सारे प्रेजुडिस सब कुछ टूट गया मेरे अंदर का। जो कहते हैं ना कि आज मैं यहाँ हूँ, एब्स्ट्रैक्ट रूम में हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म की वजह से। मतलब असगर फरहादी ने जो डोर ओपन करा मेरे लिए, उसके बाद से कोई रिटर्न नहीं है वहां से सिर्फ वो बढ़ता गया। ये पहला वर्ल्ड मैंने डिस्कवर करा था, और उसके बाद से आज मैंने 30-40 अलग दुनिया खोज ली है, और कितनी दुनिया ऐसी बची हुई है जिसको खोजने उससे पहले भी मैं रोया था। इससे पहले भी मैं जब जोधा अकबर या फिर गए थे वो शाहरुख की सारी फिल्मों में मैं रोता था। बट यहाँ पे जब मैं रो रहा था तब मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था अपने आप को कि मैं रो क्यों रहा हूँ। जिस तरीके से ये मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था, मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा था। मैं पागल हो गया था एक हफ्ते तक ये देखने के बाद। बट जिस तरीके से इस फिल्म में मतलब जो दो कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट है, जो लास्ट में वो आंसर नहीं देती है कि वो किसके साथ जाएगी, अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ, और जो उसके पापा का कैरेक्टर है, मतलब कितनी जरूरत होती है हमें ये बताने वाला कोई कि कोई सामने से कह दे कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। जो कितनी वो नीड होती है कि अपनी मोरालिटी को सही साबित करने की, और वो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं दे रहा। उसका बाप सिर्फ और सिर्फ देख रहा, वो एक आईना शो कर रहा है कि किस तरह से लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। वो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट वही जिस तरीके से इसने इसने मेरे फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करा था, वो अनबिलीवेबल है, अनमैचेबल है। I watched the film, I think 4-5 महीने पहले for the first time. You are so involved in the nuances of what's really happening, was because as Vishal said, every 3 minutes something new has come up. So it's a goddamn thriller that's going on in front of you, and some nuance comes in. A person says something in a certain way, because that is also very important, how the person says something. And the second time when I watching it today, I didn't even get into the nuances. I was actually thinking about what's the larger impact of this entire film. Like, what's the larger message? What's like, does it even matter who took the money? Does it even matter you push hui thi ki nahi hui thi? Does it even, what really matters? What doesn't matter? And all these questions were in my head, and not the nuances of everything that was, on the screen as such. सो पॉइंट वही था कि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे जब इस मूवी के बारे में जब मैंने भी फर्स्ट सुना था, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ कि ऑस्कर मिला ये वो। तो कई बार ऐसा होता है ना, आपका ऑस्कर से या तो अंडर एक्सपेक्टेशन या ओवर किसी एक लेंस से आप लेके चलते हो। Absolutely. बट इस मूवी में क्या होता है ना कि वंस यू स्टार्ट वॉचिंग इट ना, आप ये सब भूल जाते हो। मतलब इतना ब्यूटीफुली, और मतलब आपको ना एक पॉइंट के बाद फर्क नहीं पड़ता है कि क्या ये सबसे अच्छी मूवी उस साल में 2011 में थी या नहीं थी। बट ये जो मतलब एक्सपीरियंस है ना, मतलब आई डोंट नो बाकी 2011 की पिक्चर्स फॉरेन में क्या क्या थी, बट ये जिस तरीके से हिट करती है ना, आई एम नॉट श्योर इफ कोई और कर पाएगी। I'm not able to properly articulate or tell, how much it's made me feel or something like that. Even in the film, like as Vishal said, this is something that will happen right now, but it didn't happen. At every moment, I was expecting that up confrontation aega. Like, because in films, it's a very easy way out to have that monologue and tell ki you are the patriarchal guy, this is wrong with you, this, and just, but what after that? So there's no such, it's an easier way to solve that battle, not the bigger battle that is there. Because it's just because आप उसको better बोल पाए, maybe, the problem has solved, but it has not really solved उस time पे. And similarly, because even the people in the film were not able to articulate their emotions and where they came from properly, that is why it's also tough for us to put into words, because it's so complex. It proves or it reiterates the fact that most family wale conflicts, they are more nuanced, they are way more complex than that might appear in the surface. They are less one-sided, less easily blamable. They're not very easily blamable. There's more to it, and I think this is a perfect testament to that, according to me. Big thing which I connected with the film was the journey and the emotions which it conveys. I mean, I get every of the point is right. Like the suspense was there. There was an empathy and everything, and the brilliance of the acting. Obvious, everyone, even the small child, the child of the house. What most touched me was empathetical journey of all the characters from their different points of view. That reestablishing and resonating with the fact that human life is much more beyond black and white. There is a lot of grays. There is a lot of multiple. There is nothing. I mean, 50 Shades of Grey. Yeah, 50 नहीं, मुझे तो लगता है there are like more shades of grey. Like 50 Shades of Grey तो उसमें था बस. In Crime and Punishment, there was this one line: if people were seen in an entirety, will there ever remain a good person? Something like this. I'm paraphrasing, but this was something that was mentioned in the book, that if people were seen as a whole,
will any person will any person remain a good person, something like this, which was not the Yeah. main plot of the story, but still it made a lot of sense in Time of Punishment as well. No, Anyways, we'll it was a kind of backbone, don't you think so, Sankalp? Because like every character, see the father, the mother, the house help, her husband, everyone is shown that they have like the sides, which is somewhere or the other shown to the audience in exactly some scene or the other. exactly I really appreciate the camera work, and not exactly in this film also. असगर फरहादी के मूवीज में ही मैंने बहुत बार, अबाउट एली का नाम ले रही थी अभी आंटी, तो उनका उसका भी मुझे एक छोटे से अपार्टमेंट में शूट कर रहे हैं ये, मतलब छोटा या जैसा भी एक मिड साइज अपार्टमेंट है, उसमें मुझे स्टेजिंग और ब्लॉकिंग इतनी अच्छी लगती है इनके, एक रूम से दूसरे रूम में कैमरा जा रहा है, सिंगल शॉट से डबल शॉट बन जा रहा है, सो वो बहुत प्यारा रहता है। आई मीन hats off to the brilliance of such director and cinematographer involved कि इतने beautifully वो plan करते हैं, मतलब it is not an easy thing। जितना अच्छा से, मतलब एक बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा कोई काम करता है ना तो लगता है कि कितना इजीली किया होगा। आई मीन जो टॉप नॉच एक्टर्स जब एक्ट करते हैं तो हमें लगता है कितना इजी एक्टिंग, बट एक्चुअली है नहीं। इट इज द जीनियस ऑफ द वर्क दैट मेक्स इट लुक effortless. Yeah, effortless। ये एग्जैक्टली effortless लगता है। about the effortless thing in the film, acting, obviously he mentioned about that. Even the editing, it's a general conventionally it's mentioned a lot of times in films also, that in film theory also, that good editing is when it's not visible in a film. There was only one transition or like fade out wala scene hota na, like fade karte hain wo, and to transition to the next scene, it happens only once, and that is at the end of the film when the daughter ko court mein bulate hain, and she confesses, she tells sort of a lie ki matlab, yeah, I told my dad that whatever happened. After that, when she's crying in the back of the car, that's the only time we see a fade out sort of a scene, like a fade out transition to get to the next scene. Because again we realize, what, it was actually about this girl. हम इतना फटफट सब चीजें देख रहे हैं, we forgot what it was about. It not just the parents who became disillusioned, it was also us who became disillusioned. We were thinking about who took the money, is she even pregnant, did she even know, because we also forgot it wasn't about that. It doesn't matter who took the money, it doesn't matter उसने वो pregnant थी या नहीं थी. It's more than that. It tells us, because if you really think about it, that entire this housemaid thing, this entire thing that's happened, it's just an extended subplot. It's nothing more than that, because the story was set up in the first scene and it got rounded up in the last scene. That is the story. Because if you explain to somebody, and a separation for that matter is that separation, the entire beach ka scene is an exposition sort of a thing to tell you more about these people, to see how these people will react in vulnerable situations, how they'll be in these extreme situations, for you, so that you can take a side, that you can decide, you know what, I'm going to support the lady over here or the guy over here, and make you question, make you the judge. और सेपरेशन के बारे में मतलब मुझे लगता है सेपरेशन के ना बहुत सारी मीनिंग है। मतलब ये सेपरेशन किस चीज को रेफर करता है इस मूवी में, क्या वो क्लास डिवाइड को रेफर कर रहा है, या उनके अंदर जो डुअलिटी है उसको कर रहा है, द सेपरेशन विद देम, क्योंकि ऑल द कैरेक्टर्स बारिंग रजिया's daughter, they are shown to have, even like she has like a sort of duality कि हर कोई, मतलब किसी का आपको एक अच्छा साइड दिखता है, आपको दिखता है कि अच्छा उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बट आफ्टर सम टाइम इट इज रिवील्ड कि मतलब नहीं, देखो जस्ट बिकॉज ये अकेला रह रहा है इससे इतना एम्पथाइज मत करो, जस्ट बिकॉज ये गरीब है इससे इतना एम्पथाइज मत करो, सबके मतलब अपने अपने डीमंस हैं, सबके मतलब अपने अपने एक साइड है। इवन विद his daughter, right, she is drawing those figures on the board where she's like, she's sort of looking for the liberation because she draws herself without a hijab and other women are wearing a hijab. So उनसे वो escape करने के लिए जिस तरीके से वो लिख रही है, but last में जब उनकी फैमिली जब जा रही होती है और वो तैरमे को बिल्कुल ऐसे गुस्से वाला लुक देती है कि probably that independence that I could have achieved with that sort of a financial backing, but probably that's some sort of a education, मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाती है, बट दैट इज नॉट देयर। यू कैन जस्ट सी कि क्या क्या क्रश हुआ, मतलब जितने भी सेपरेशन है उनके अंदर, हर किसी के अंदर। और क्लास वाला तो खैर मतलब उन्होंने कलर के थ्रू भी काफी कम्युनिकेट किया है मूवी में। The entire film is a constant tussle or conflict between traditionalism and modernism, so to say. Because if, for example, in the first scene, when she was asked that why do you want to leave the country by the judge and by her husband as well at the same time, she mentions that I don't want my girl to be raised in such circumstances. Even though it's never explicitly mentioned in the entire film that what these circumstances were, but you still understood where she came from.
And honestly, I don't think it would be appropriate to judge where she came from and why she maybe decided to think about herself before anybody else. Like or like herself or her kid before anybody else. It's not like she was being too selfish about it. It's about the subtle problems that, for example, there were a couple of scenes, if you mention, if you very closely noticed, there was this one scene when the daughter was out there to put petrol in the car. The embarrassment or shame the kid felt, if you specifically mentioned in that, and because her dad was like, she was like, "Arey jaldi aati ho andar, people are watching me, like people are watching me doing this," and she's like, her dad is like, "कोई बात नहीं, देख कर हुआ, कोई issue नहीं है." So how inherent it was, this sort of this difference that was there. I think that was enough for the mom to decide that I want her to be raised in a much more progressive society. कुछ फिल्म जब हम देखते हैं तो वो फिल्म हम देखते हैं फिल्म, बट कुछ फिल्म हमें बताती है किस तरीके से देखते हैं फिल्म. तो ये वन ऑफ दैट फिल्म्स था जो हमको बता रहा है कि फिल्म्स को किस तरीके से देखा जाता है. मेरे को याद है, मतलब इस फिल्म से अगर थोड़ा सा टॉप कहते गियर अगर कोई लेता है तो वो इंसिडीज लेता है. तरीके का उसका क्राफ्ट है, कोई उसके आसपास भी नहीं है. और जो मेरे को मतलब बोलना भी था कि जो मेरा फेवरेट जॉनर भी है वो ड्रामा है, और उसका रीजन ही यही फिल्म था, और जो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई कि मतलब जब अगर हम देखें तो सिंघम और अर्धसत्या जो है गोविंद निहलानी की, दोनों एक ही फिल्म है. एक बंदा है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, बट जो अर्धसत्या में जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है वो वहां पे सिंघम में नहीं दिखा रहा है. वहां पे सिर्फ ये बता रहा है ये गलत है, ये कहते सही है, बट जितने कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ दिखाया है अर्धसत्या में, वो मैटर करता है कि कितना ब्रिलियंटली फिल्म बनाया गया है अर्धसत्या या फिर कोई भी गोविंद निहलानी की फिल्म. जो नसीम फिल्म है सईद अख्तर मिर्जा का, तो मेरे को उस फिल्म से पहले मैंने जितनी भी पार्टीशन के अराउंड फिल्म देखी थी उसमें सिर्फ यही था कि अगर कोई पूछता था कि आप क्यों पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया आ गए या इंडिया छोड़ करके क्यों पाकिस्तान चले गए, तो बहुत सारे रीजंस देते थे कि वो लूटने के लिए आए, वो मारने के लिए आए, ऐसा हुआ, वो बहुत खराब लोग थे, ऐसा था. बट उसमें जब कैफी आजमी वहां पे एक ग्रैंडफादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, और उसकी जब पोती उससे पूछती है कि आप क्यों इंडिया आ गए, पाकिस्तान में कहते इंडिया छोड़ के पाकिस्तान क्यों नहीं गए, इंडिया में ही क्यों रह गए, तो वो बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा जवाब देता है कि जो हमारे घर के बाहर एक अमरूद का पेड़ था ना, वो तेरी नानी को बहुत पसंद था, और सिर्फ उस वजह से हम इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान नहीं गए. मतलब डिफिकल्ट कितना हो सकता है मूव करना, एंड यू नो हाउ. सो इवन आप देखोगे जब सिमीन फर्स्ट टाइम घर छोड़ के जा रही है, राइट, कितनी सारी चीजें मतलब उसके साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब आप इरिटेट हो सकते हो कि नो जस्ट ओके ठीक है नहीं जाना मेरे को आज. मतलब जब ये लोग भी, नादिर और रजिया भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो यूजुअली आप कोई आपके घर में आप जगह बैठ के कॉन्वर्जेशन करोगे, राइट, बट वो बीच में रास्ते खड़े होकर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, यू नो. देन सिमीन इज नेविगेटिंग अराउंड, वो अपना सामान पैक कर रही है, उसका सूटकेस ढंग से नहीं बंद हो रहा है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू नो पुट एवरीथिंग इनसाइड, ट्राइंग टू क्लोज इट. फिर वो कैबिनेट वगैरह जो वहाँ पे जो जिनका फ्लोर का पंगा होता है कि आपने 2 फ्लोर बोला था, 3 फ्लोर है, तो एक वो उसको मूव आउट करने में दिक्कत है. जब वो लाइब्रेरी की बुक्स आई थिंक रिटर्न कर रही है तो उस बंदे के पास चेंज नहीं है. जब वो उसके फादर इन लॉ को लास्ट बाय गुड बाय बोलने जाती है, तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है. तो इस सॉर्ट ऑफ कि उसके लिए कितना डिफिकल्ट है इन सब चीजों से निकलना, और वो किस चीज से इस चीज को फाइट कर रही है. और ऑनेस्टली जब मैंने 2014 में देखी थी तो मैंने काफी उसको मतलब नेगेटिव ही कैरेक्टर के, मुझे लगा था कि हाँ मतलब ऐसे कैसे तुम अबैंडन करके चले जा सकते हो. बट वो ये कि ओवर द इयर्स जो सीखा उससे रियलाइज किया कि नहीं, कितना मतलब उसके लिए छोड़ना भी बहुत डिफिकल्ट था. बट शी हैज टू मेक अ डिसीजन बिकॉज देयर आर मतलब जो द थिंग्स व्हिच आर अनटोल्ड, उनकी वजह से लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि होगा भी, इस वजह से वो जा रही है. एक छोटा सा और पॉइंट था बस, आई फेल्ट लाइक ऑल द मेन इन दिस फिल्म दे वर ऑल डिपेंडेंट ऑन वुमेन. मतलब एवरी कैरेक्टर, एवरी सिंगल मैन. मुझे तो नादिर का भी ऐसा लगता है कि वो तैरमे को इंडिपेंडेंट इसलिए बना रहा था ताकि मुझे किसी एक एक्स्ट्रा की केयर नहीं करनी पड़े. मतलब शी विल बी ऑन हर ओन एंड लाइक आई थिंक शी विल बी एबल टू यू नो हैंडल थिंग्स बेटर. सो मतलब ऐसा होगा कि मुझ पे नहीं आएगा चीजें. द ग्रैंडफादर इज लाइक मोस्ट डिपेंडेंट, एंड वो अगर किसी प्रॉब्लम में भी तो कभी नादिर का नाम नहीं लेता. ही इज ऑलवेज सेइंग सिमीन. इवन रजिया's husband, he is not working, वो जेल आता जाता रहता है. रजिया इज यू नो द वन हु इज वर्किंग. सो आई फील लाइक एक ये बहुत ही मतलब टोन था कि मतलब इन अ सोसाइटी व्हिच इज सेड टू बी पेट्रियार्कल, कितनी ज्यादा सपोर्ट है यू नो यू हैव फ्रॉम वुमेन, बट स्टिल द सोसाइटी इज स्टिल पेट्रियार्कल. द रूल्स आर डिक्टेटेड, मतलब सो टू से डिक्टेटेड बाय देम. बिकॉज इवन जब वो बोलता है कि हाउ डू यू नो रजिया, तो बोलता है कि वो मेरे यहाँ का मतलब शी वाज वर्किंग एट माय होम
बट देन ही वाज लाइक कि परमिशन किसने दी उसको, समथिंग ऐसा बोलता है उसका जो हस्बैंड होता है, होदिया से समथिंग नाम होता है उसको। तो वो सारी चीजें कि मतलब कितना कुछ है, बट मतलब बहुत लाइटली हम बोल देते हैं कि प्रोग्रेसिव हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज इक्वल हैं वो, बट स्टिल कितनी ज्यादा मतलब कितनी इम्बाइब्ड है ये मतलब थॉट ये पेट्रियार्की। तो बहुत ही अच्छी उस पे कमेंट्री थी। वो जो मेड की वो डॉटर थी, आई फॉरगॉट हर नेम, आई फील दैट शी रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर एंड Tarma. And I think someone else covered that. In the end, she was angry, like with all that money she could have had a future similar like Tarma or something like that. I at moments felt that the little girl was always looking up to Tarma, and she was like, at some point she wants to be that. I noticed this first when they were playing the foosball, and every time she was going to make a move, she was looking at Tarma. Okay, am I making the right move or not? That little child had that के she is my guide करके। Anyone wants to talk about their favorite scene? मेरे को वो सीन बहुत प्यारा लगा जब Tarma and her dad, they are वो like the dad is constantly questioning her. She has her exam and she is giving back answers. लास्ट में होता है कि उसको है ना कोई तो ट्रांसलेशन उर्दू या अरेबिक में बोल देते हैं, लाइक स्कूल में सिखाया होता है, बट द करेक्ट ट्रांसलेशन गलत था। तो वो तो फिर उसके फादर बहुत ही एक सही चीज बोलते हैं कि आई डोंट केयर हु टेल्स यू व्हाट, द राइट थिंग इज द राइट थिंग। तो वो जो एक सीन था ना, दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी। लाइक मेरे पापा यूजुअली मुझे ऐसी ही सीख देते आए हैं अभी तक, तो दैट इज वेयर आई कनेक्टेड अ लॉट एंड लाइक आई लाइक दैट सीन अ लॉट। मेरे साथ वो रहेगा मेरे जहन में। Yeah, this is a really interesting thing to mention, because even though as constantly we'll keep on mentioning the guy to be more patriarchal and all of that, but ये छोटी छोटी चीजें तो दिखाते कि he is actually progressive. He wants the kid to have an original thought and a thinking of her own, जिसमें जो उसकी दादी जो टीचर ने सिखाया उस पे डिपेंडेंट नहीं होगा. She'll have her own say कि मतलब this is the right thing to say, this is the right word to be used. So like he motivated an original thought in her, so that's very interesting about him as well. So very interestingly mentioned that. मेरे को भी अपने फेवरेट सीन के बारे में बोलना था। जो एक सीन याद है जब कहते हैं उसके फादर को जज कहता है कि वो कहता है कि मेरे फादर को भी चोट लगी थी, तो उसके जज कहता है कि आप दिखाओ, तो वो उसका कपड़ा उतारने लगता है कोर्ट रूम में, मतलब और फिर जब उसका पहले शर्ट उतारता है, उसके बाद जो दूसरा लेयर उतारने वाला होता है, उसके बाद वो 2 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखता है, और मतलब इतना प्यारा सीन है वो सिर्फ। और फिर उसके बाद फिर वो कपड़े पहनाने लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे को सबूत वगैरह कुछ नहीं देना, और मेरे फादर को एम्बेरेस नहीं करना वहां पे, या फिर जो भी था वहां पे जो भी उसका सेंस था। बट इतना प्यारा सीन था वो मेरे को, मतलब वहां पे मेरे को दिखा कि जो उसके अंदर का जो इंसानियत है, वो जो कुछ भी उसके अंदर अच्छाई है, या फिर जो कुछ भी वो अपने पापा की नजरों में देख सकता था, तो हाँ वो उस सीन का कोई तोड़ नहीं है पूरे फिल्म में। तर्मे के कैरेक्टर के बारे में बस मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लाइक आई हैव एवर सीन इन सिनेमा तर्मे के बारे में, कि वो अपने कॉलेज स्कूल के लिए जब वो प्रोजेक्ट ले जा रही थी, तो प्रोजेक्ट लिटरली एक घर होता है, और 2-3 सीन में जब वो ऐसा होता है कि वो शेकी हो रहा है कि वेदर दिस फैमिली विल कम टुगेदर और नॉट, वो थोड़ा सा आता है। उसके बाद there's a point जिसके बाद वो प्रोजेक्ट दिखाते ही नहीं है, मतलब इट्स जस्ट आउट, क्योंकि फैमिली उस घर उस कॉन्टेक्स्ट से ना उसकी स्टोरी निकल चुकी है। तो जिस तरीके से वो ब्रेक करके बाहर आया, और बहुत छोटा सा उन्होंने डिटेल डाली है फरहादी ने, मतलब मचा ही दिया भाई। This was brilliantly mentioned. ये तो बहुत ही बढ़िया डिटेल्स नोटिस किया. Thank you so much for that. The one thing which really stayed with me was the confrontation between Charmaine and her father. Very subtle, very silent, minimal noise, कुछ नहीं. Dialogues भी मतलब थोड़ा सा ही, but the way she looks, I mean, generally as children we are taught, I mean, the confirmation bias, like whatever they are saying is right, and whatever they are saying you have to accept and move on. But the way she looks into her father's eyes and she confronts her, say, you did know, right? You didn't say it, but you did know, right? And first there is a denial, and then there is a pause, and then there is an acceptance. If he accepts, I mean, he denies, then he says, if I'm denying to my own daughter, whom he actually loves, I mean, there is no, and he wants to be a good father. He wants to give out good values about himself as well. That we have seen now, where he insists, go and take the money. You because you filled the job, na?
The खुद क्या ना petrol, go वही and answer it and take the money. And then he says, keep that, that's for you. Like daughter thinks that, like just because I did, so my father will get a, that's term is POV. Because she comes and she looks, acha, he made this do, I mean, he made me do this just because I would get the money. Not He was not into wanting the money. So there is an instance of a good father. And then there he says, like, मतलब मुझे, I found this connect very nice, and that confrontation of a father, because he understood कि मैं झुक जा रहा हूँ, मैं झुक जा रहा हूँ अपने, like, मेरे डॉटर के, मतलब मेरी बेटी के नजर में मैं गिर जा रहा हूँ, but he doesn't want to do that. So there is a pause and then there is an acceptance. वो छोटा सा space and छोटा सा minimum noise, minimum dialogue, but says so much of the characters, of the relationship, and like, he doesn't want her to let her go. My favorite scene is the first scene of the film. One of the best exposition scenes I have seen. And I love the POV of the shot. We don't see the judge. The judge is us. We are supposed to judge and see कि कौन क्या सही बोल रहा है, कौन क्या गलत बोल रहा है, and we are made to, because it's very easy or very human to conclude, to take sides. And the entire story later also constantly keeps you questioning about which side you are on. So I think the first scene is very fascinating for me, because it also proves the entire film is about you are arguing not to solve the situation, but to prove that you are right. Because every argument requires a proper proof, a proper this and that. It also requires validation from the person who are giving this argument to. Like if I tell आशुतोष कि मतलब अरे ये ऐसे हुआ था, अगर वो मेरी सुनेगा ही नहीं तो मतलब मैं तो गलत हो गया ना, फिर मैं तो कोई बात सुना ही नहीं. So they want the judge to listen, and that's why they speak in certain manner also कि अरे हाँ तुम चले जाओ, तुम्हें तो अपनी पड़ी है, अरे इसको तो अपनी पड़ी है सर, इसको अपनी पड़ी है. He's looking at you and telling, so you are supposed to think कि अरे ये क्या मतलब सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है. So talking about my favorite scene in the movie, it was when ये लोग जाते हैं to give that check to the help and उनके घर जाते हैं ना जब, तो that is actually the first time when we actually see the lower privileged people का household. उससे पहले everything is from their point of view, उनके घर पे होता है. And that is actually the first time when we see their house कि उनका actual living standards कितना stark है. That is actually shown कि इतना congested घर पे there are like 10 people, 10 elders sitting down. The entire thing, उनका kitchen कितना congested है. And when she goes inside the kitchen और जब उनका husband follow करता है, वो door lock करके वो जब वो बोलती है कि I'm not sure, मुझे लगता है पहले दिन कार ठोक दी. वो पूरा सीन ना, मतलब दैट रियलाइजेशन उसका हस्बैंड को होता है कि जब ही इज इन द रॉन्ग, वो अलग है. एंड द काइंड ऑफ एनक्लोज्ड स्पेस जो होता है, दैट एनक्लोजर एड्स अनदर डिग्री ऑफ अनकंफर्टेबलनेस जो चुभती है ना अंदर से. इट एड्स दैट टू इट. एक तो पहले से वो गरीब लोग हैं और दूसरे से दे आर इन द रॉन्ग नाउ एंड दे हैव टू फेस एन ऑकवर्ड सिचुएशन. तो पूरा वो कंजेस्टेड सिचुएशन, वो लाइक आई थिंक दैट इज वेरी वेल शोन देयर. Absolutely. And you know वहाँ पे you also realize कि उस बंदे का impulse नहीं है कि मैं अपनी wife पे हाथ उठाऊं. His impulse was to beat himself. Like अरे क्या कल, it again shows कि he's stopping himself from doing that, even though like it's wrong to say this, but it might not really mean a big thing to people around him if he does that in that heat of the situation उस time पे. But still उस time पे you realize कि उसका impulse से खुद को मार रहा है वो. Like just think about it. Like it again shows कि वो he's not a savage. जैसे हम समझ रहे हैं उसको उस टाइम पे. ये बेचारे वो तो सही सोच रहा था एक तरीके से इन सम वे. जो दो सीन्स मेरे लिए स्टक हुए वो थे when he was sitting with Tarmay and he is handcuffed, the very first time जब वो उसको मिलती है, and then वो Tarmay पूछती है you promised me, and then yes he said he promised, and then that soldier who is with him, he also kind of उसका हाथ भी उठता है. So I mean you are watching a film where जहाँ पे आपको इनकी कहानी दिखती है, but then again we get to see this office filled with all these stories. हर कोई उसी chaos से आ रहा है, and these soldiers आज इसका हैंडकफ पकड़ा है, कल किसी और का पकड़ेंगे, परसों किसी और का पकड़ेंगे और वापस घर भी जाएंगे अपनी फैमिली के पास. So that that hand actually gave me an extension that this is not their story, boss. यहाँ पे एक soldier भी बैठा, he is also listening to all these things जो उसके अराउंड हो रही है, एंड देन वो सारा बैगेज कैरी करके घर भी जाता है. दैट एक्सटेंशन बहुत मतलब 5 सेकंड का एक्सटेंशन है, बट वो एक्सटेंशन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एस्टैब्लिश करके छोड़ दिया. नाउ इट्स अप टू यू दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड और जस्ट टेक इट अवे ऐसे ही. एंड सेकंड सीन आई थिंक इज व्हेन द
Razia was accused of tying up his father when they were there, and वहां पे वो उसका husband बोलता है, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा करके वो बाहर जाता है, and then उसको 3 दिन की जेल वो वहीं के वहीं सुना देता है, the judge. And then the way she was, रो रही है, सामने चीजें दिखा रही है, नादिर somewhere feel कि यार ठीक है, बंदा डिसरिस्पेक्टफुल है, बट जाने देते हैं यार. मतलब देन ही सेड ना कि सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज लेट हिम गो दिस टाइम. आई मीन कोई आपको मतलब इन द होल फिल्म जो हमें दिखाया, बट आप रियल लाइफ में भी सोचो कि उसका बच्चा मिसकैरेज हुआ है, दैट हस्बैंड ऑफ रजिया इज नेवर गोइंग टू बी पोलाइट विद दैट गाय, with Nadir, is never going to be polite. Still, you are developing feelings as a human, as a humanity feelings, because you are seeing that this is something which is not, right on human ground. So that's what he, kind of said to the judge, sir, please let him go this time. Sometimes the intuition comes in and you feel that, this is something, this is not the end of the world. This is I mean, it is okay. I'm happy that he got 3 days in jail because he's misbehaving with me and he is kind of deteriorating the whole decorum of the court. But then again, वो एक limit तक है. मतलब that kind of, that line of that the director has drawn कि अगर गुस्सा है और अगर एक वो चीज तो एक लिमिट तक. You don't have to every time be very preachy about it कि भाई मतलब खत्म ही कर देना है, इसको मार ही दो, इसको काला पानी कर दो. Why is that so much hate? There should not be. There should be a limited hate that leads to the reason के बाहर नहीं जानी चाहिए. Emotions are so complex और एक टाइम पे सिर्फ एक इमोशन थोड़ी होता है कभी भी. Yep. मतलब मेरे को लगा कि I don't have the capability or I don't have the emotional competency to actually decipher what this person is actually feeling. और ये real नहीं है. मतलब मैंने किसी को real life में नहीं देखा है ऐसे. ये एक फिल्म है. फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का एक एक्टर प्ले कर रहा है, और जिसने ये चीजें एक डायरेक्टर से सुनी होंगी, एक राइटर ने लिखी होंगी, एंड देन ही इज परसीविंग इट. देयर सो मेनी पर्सपेक्टिव प्लेड अराउंड in that one scene, and then am I able to really decipher that? No, that's not possible. I think the film is actually a very political film if you really think about it, because मैंने एक दो कोई वीडियो देखे थे, but it had a certain political layering, subtle political layering, because they can't be very overt about it in their films, वरना बनने नहीं मिलेगी पहली बात तो. So there was certain political layering fleetingly in the film, and secondly also it's a very feminist film. The film is a very feminist film. The guy, the director, had a certain feminist leaning in the film, like additional empathy for the female characters in the film. तो भैया ने ना उसकी बात की, तैरमे की. So like how she is very objective, and like one thing that I would like to add to that is, like throughout the movie the dad is, like वो एक पता है conversation होता है मॉम और तैरमे के बीच में कि तुम्हारे पापा ने मुझे, मतलब your father did not know that I was going to come back, did he? And पहले वो मना करती है, फिर she goes silent. तो वहां पे like she like एक मतलब थ्रू आउट द मूवी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं 11 साल की बच्ची को दिख रही हूँ. एंड ड्यूरिंग ऑल दोस पार्ट्स तैरमे हैज वेरी ब्यूटीफुली मेंटेन्ड द इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू पेरेंट्स कि इनका पास्ट क्या है वो अपन को पता नहीं है, बट दे वांट टू सेपरेट. तो उनके बीच में और उनके जितनी कॉन्वर्सेशंस होती है, so we realize that there have been fights which are escalated a lot, and Terme she tries to maintain the equilibrium between the two कि इनका कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, इनका कुछ भी बात हो, तो भी वो एस्केलेट होके एक पॉइंट ऑफ वो पॉइंट पे ना पहुंच जाए जहाँ डिसरिस्पेक्ट हो किसी का भी. And like Terme she like she knows what to tell her father, she knows what to tell her mother, she knows that what they're both going to understand. At the end, I don't know like whom she went ahead with, but like that scene when she's like, yes, I've decided, like कौन है? Yes, I've decided, कौन है? And at that particular point when she like वो पहली बार बोलती है कि I have decided, तो फिर मुझे लगा ठीक है अभी अपने पापा का नाम बोलेगी. फिर वो दूसरी बार बोलती है तो मुझे लगता है ठीक है अपनी माँ का नाम बोलेगी. तो जितनी बार वो कॉन्वर्सेशन चलते हैं ना, उतनी बार I am also like shifting left or right, but at the end I like to think like maybe she went with her mother. पता नहीं इसका I think वो father के साथ गई है. To be very honest, मुझे लगता है father के साथ गई because उसकी mom ने बोला
क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। अब सब assumption लगा रहे हैं। नो बिकॉज उसकी मॉम को ये पता है दैट कि, क्योंकि उसकी मॉम ने भी ये बोला था दैट कि आई नो व्हाई शी इज स्टेइंग विद यू, शी डजंट रियली वांट द मैरिज टू एंड। अगर मैं वो तुम्हारा मतलब वो मेरे साथ चली गई, आई काइंड ऑफ टेक हर अवे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो तुम्हारे साथ इसलिए बिकॉज वो जोड़ के रखा है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई शी इज हैप्पी, बिकॉज दे बोथ डिसाइडेड कि सेपरेट होना है, बट जो आखिरी जो कड़ी है वो इसको दे दी। तो नाउ शी कैन गो बैक टू दैट लूप अगेन where she will stay with her dad, and she can come and through, go to and fro. At least इस तरीके से they can be together, because this whole chaos जो भी सीन हुआ उसके चक्कर में लग रहा था कि फादर क्रिमिनली इक्विट हो जाएंगे, एंड देन इवेंचुअली उसको अपनी मॉम के साथ रहना पड़ेगा, तो वो इवेंचुअली सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन बिकॉज दैट क्रिमिनल सीन और it has gone away, she can now pull both of these people back into their normal life. उस सीन से पहले जब उसके फादर उसको बुलाने आते हैं, शी इज सीइंग दैट देयर इज अ मदर एंड देयर इज अ लैड, उसका बच्चा उसके वहां पे सो रहा है केयर फ्री। हाउ कैन अ चाइल्ड बी सो मच केयर फ्री? तभी ना जब उसके बोथ पेरेंट्स आर अराउंड अस। पेरेंट भले ही फादर चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, पेरेंट अराउंड तो है ना। So she knows that कि I am the only one who is going to keep them glued. So I think that's what she's happy about. मुझे लगता है शायद फादर के साथ गई, because from there the mother will never go. Such a difficult emotion she was explaining in the last scene. Like you don't know she's happy, she's not happy. Like so हंस के रो पड़ती है। मैं भी अपना पहले ये बता ही देता हूँ, मतलब I would like to left in that ambiguity. मेरे को लगा था वैसे पहले कि वो फादर के साथ जाएगी, बट मे बी वो कहते अपने अकेले के लिए रह ले। जो जिस तरीके का ड्रामा क्रिएट किया गया है उसका एक वसन बाला ने कहते अपनी एक वीडियो में बताया था कि जब डायरेक्टर कुछ ऐसा मिस्ट्री थ्रिलर फॉर्म करता है तो उसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म करने का तरीका ये होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर अपने पास रखता है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो ऑडियंस को दे देता है, और कुछ जो कुछ कहते इन्फॉर्मेशन है वो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, और इसी के बीच जो ये इंटरप्रिटेशन का गेम चलता है उससे ये कैओस क्रिएट होता है। तो उसका एक यूज किया गया था। दूसरा, एरोन सॉर्किन का एक बहुत अच्छा लाइन है एक टाइप का ऐसे ड्रामाज का, कि जो कैरेक्टर से अगर हमको बताना ये कैरेक्टर कैसा है, तो जो कैरेक्टर बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, ये है, ऐसा है, वैसा है, वो असलियत में कैरेक्टर नहीं होता। बट जिस तरीके से कैरेक्टर बिहेव करता है ड्रामा में, वो दिखाता है कि कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर क्या सोचता है, क्या बिलीव करता है, वो सब। तो जो स्टार्टिंग से इस बंदे के अंदर जो वो नीड है कि मैं बहुत अच्छा फादर हूँ, बहुत अच्छा बेटा हूँ, बहुत अच्छा सिटीजन हूँ इराक का, तो वो कहीं ना कहीं वो उसके सिचुएशंस के साथ उसको रियलाइज होता है कि शायद मैं वहां पे नहीं हूँ, शायद मैं उतना अच्छा पिता नहीं हूँ, शायद मैं उतना अच्छा बेटा नहीं हूँ, जो विशाल ने भी कहा था, जो सीन में वो रोने लगता है। तो जब उसको रियलाइज होता है कि मे भी कहते हैं मेरी गलती हो यहाँ पे, और बट उस बंदे ने ट्राई पूरा करा है। जब वो एक बात आ रही थी कि वो शायद कहते हैं ट्रेडिशनलिज्म में वो खो गया था और इस वजह से वो मॉडर्निज्म का उतना ज्यादा वो नहीं चला पाया, बट कहते हैं ना कि जब कुछ किसी पिछड़ी जगह की हम बात करते हैं तो बहुत आसान होता है वहां से भाग जाना, बट वहां रह करके सिचुएशन को चेंज करना वो काफी मुश्किल होता है। और इसी क्वालिटी की वजह से जो उसकी बेटी रहती है वो उसके साथ रहना भी चाहती है। दो चीजें जो मुझे लगी कि ये मूवी ना 2 पॉइंट पे खत्म हो सकती है, मतलब एक तो जहां हुई, एक और पॉइंट जहां पे मूवी खत्म हो सकती थी वो ये था कि तैरमे ये जवाब ना देती कि हाँ या ना उसने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, बट क्योंकि उन्होंने उसके कैरेक्टर, क्योंकि वो भी एक बहुत ऑब्वियस मतलब एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इजी पॉइंट हो जाता, एक इजी वे आउट हो जाता कि हाँ नहीं, क्या पता वो भी डिसाइड कर पाई थी कि नहीं, बट क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा बिल्ड हुआ था कि बस उसके पास एक लेंस है, उसके पास अपना विजन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, सो दे एंडेड इट एट दैट प्लेस कि जहाँ पे मतलब उन्होंने एब्सोल्यूट कर दिया कि एक आंसर है इसका, हम बता नहीं रहे पर इसका एक आंसर है, एक वो चीज। और दूसरा जो फर्स्ट सीन से लास्ट सीन तक में जो उनका आर्क है कि मतलब फर्स्ट वो फ्रेम के सेंटर में है, दोनों बात कर रहे हैं कैमरे की तरफ, बाद में टुवर्ड्स द एंड एकदम वो ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं फ्रेम के, और एक पीछे कांच भी टूटा है, बीच में कांच है और क्या होता है देखोगे तो पहले नादिर पहले ही बैठ जाता है, उसको खाली सीट मिलती है तो, और इसके पास सीट खाली होती है बट सिमी इधर आके बैठती नहीं है। इट्स आल्सो सॉर्ट ऑफ पूरा जो बताई, मतलब इट्स जस्ट हाँ इट्स इम्पोर्टेंट। और जो थ्रू आउट वो एस्टैब्लिश किया था ना कि उसके जो
वो अपने फादर की वजह से रुक रहा था। तो फाइनल सीन में यही है कि बिटवीन द टाइम की ये सारे इवेंट्स हुए और इन लोगों ने डिवोर्स लिया, बताते नहीं है कितना टाइम हुआ, क्या उन्होंने इसको सेकेंड चांस दिया, क्या वो थोड़े दिन साथ में रहे, ये भी नहीं बताते, क्योंकि इन द मिडल ऑफ इट his father has passed away, which is why they are all wearing black in the last scene. तो था कि उसका जो स्टेटेड रीजन था यहाँ रहने के लिए, वो रीजन अब बचा नहीं था उसके पास, बट देन स्टिल ही इज देयर। और वो जो रीजंस उन्होंने शुरू में स्टेट किए थे और कैसे वो सेपरेशन का मीनिंग चेंज हुआ है, आई थिंक वो बहुत ही मतलब ब्रिलियंट था। और एक वो होता है ना कि रिलेशनशिप में देखो आप दो तरीके से मतलब है कि या तो आपकी जो मतलब आपके वो मैच करती हो वेवलेंथ, या दूसरा उसके साथ ये भी कि आप साथ में ग्रो कर सकते हो क्या। जब आप शुरू होते हो तो आपको लगता है, क्योंकि वो शुरू में एस्टैब्लिश हो जाते हैं कि नहीं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, but they can't grow together probably. That's why they are separating. Because one is comfortable in its own world, the other one wants to go beyond this. Wants to go beyond and probably into an unknown which might or might not be, you know, better than what they are having right now. क्योंकि वो बोलता है कि मैं अपने फादर के घर में हूँ, अपने फादर का घर छोड़ के जाना in a alien land, in living in someone's house, paying that rent, तो वो कितना मतलब daunting उसे लग रहा है, mentally daunting task, जहाँ वो हमेशा से रहा है। They didn't mention the country where they were going, right? But I'm sure it's USA for some reason. For some reason पता नहीं मुझे ना USA, मतलब मैंने इस बार नोटिस नहीं किया, बट हाँ मुझे पता नहीं क्यों USA लग रहा है। 40 दिन का वीजा बचा हुआ था, उससे पता चल जाएगा। तो एक कल्चरल चीज बहुत अच्छी दिखाई। आई मीन आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो फिल्म में इतनी बार क्यों दिखाई गई, बट एक बहुत अच्छी चीज थी that whenever, I mean, उसके डिवोर्सी वाइफ भी उससे मिल रही है, वो हैंडकफ्ड है, और you know, they are greeting each other, you know, सलाम बोलते हैं। मुश्किल, अरे दो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिमिलर, मुश्किल, प्रॉब्लम बोलते हैं। हाँ, I mean, मैं सोच रहा हूँ कि यार this is a bit disturbing for me, you know, मतलब एक्यूजिशन लगा दिया, उसका बच्चा मर गया यार। I mean, I was like very shocked. I mean, जो कि मुझे उनके चेहरों पे नहीं दिखा, ठीक है वो तो एक चीज है, बट whenever I see people are meeting each other, like salam. I mean, how you cannot actually forget the culture of the people. मतलब आप ईरानियन हो, I mean, you should be proud of it, and how well they have been, you know, kind of putting that into the film. I mean, वाइफ आएगी तो वो अपने हस्बैंड को भी सलाम बोलेगी यार, मतलब क्यों नहीं बोलेगी। I mean, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, कोई दिल में कोई मतलब दुश्मन थोड़ी ना बन गए, सलाम बोलना तो इज अ गुड थिंग। तो कल्चरली जो छोटी छोटी चीजें प्लांट कर गई ना, आई रियली लाइक दीस थिंग्स यार। मतलब विशाल पता है ना, एक टाइम पे ही बस वापस आता है और देखता है ना उसका फादर बेड से बंधा हुआ है, गिरा हुआ है, उसी टाइम ऐसा होता है जब वो वापस रजिया आती है और तब तर्मे के सलाम का जवाब नहीं देती, तर्मे उसके सलाम का जवाब नहीं देती है, कि मतलब नाउ दैट्स स्टेम्स फ्रॉम एंगर ना। तो बहुत ही सही, बहुत ही ये। और छोटी सी बच्ची यार, मतलब आई नो उसको शायद कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले होंगे रिगार्डिंग एक्टिंग, स्टिल आई मीन वी कुड हियर, माँ ने सलाम बोला तो बच्ची ने भी सलाम बोला, उसने सलाम बोला तो उसने भी सलाम बोला। दिस इज सो ब्यूटीफुल यार, मतलब